अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम मिस फराह। Assalamu alaikum, everyone. Yes, welcome, Maria. Assalamu alaikum, and welcome to all of you. थैंक यू How सो are you, मच। Maria? आई एम डूइंग वेल, हाउ आर यू? Alhamdulillah, I'm good. So we have four participants at the moment: Aisha, Badr, Kishwar, Saad Mukhtar. Yes, we Can you can give them start, a I think. reminder? Yes, we can start. And okay, so एक सेकंड दीजिएगा जस्ट. Okay. Okay. Yes. So, uh, here we are for something orientation session है, and welcome to all of you. Uh, आज के सेशन में सो दिस इज बड़ा मुशर्रफ. जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, कुछ लोग और भी ज्वाइन कर रहे हैं. लेट्स देम ज्वाइन एज वेल. एंड दैट्स ग्रेट टू सी Hello यू Namira, ऑल. hello Sabah. या Hope you're doing well. Humaira. मेरा Humaira बदर. is from Gujranwala. Okay. आई नो few of them, and you must be knowing few of them. Yes. Not everyone, but Walaikum salam Namira. सैटरडे, छुट्टी वाला दिन. सब लोग एक्साइटेड हैं आज क्या हम करने वाले हैं और क्या Yeah, सेशन. people were asking me as well that what is this early years toolkit and all, and I just said that for that, obviously, you have to join our orientation. Yes. Okay, Humaira. Okay. Humaira, you are from Gujranwala, and Kishwar is from, I think she's also from Balochistan somewhere. Ayun. Walaikum salam, Sabah. Walaikum assalam. Let's okay. So let's begin. Should we Or start? yes, let's begin, and people will join in, and we are recording the session as well. So you can watch recording as well. Okay. Right. Uh, Maria, you are Can mute. you hear me, Miss Farah? Yes, I have Yes. just Now unmuted. okay. So basically, earlier के थोड़ा सा मैं बता दूं, मारिया, and then you will Yeah, yeah, continue. sure. Sure. Okay, so earlier toolkit is like कोर्स. और इस कोर्स के बारे में आज हम सारा कुछ जो भी बताने वाले हैं आगे बताते जाते हैं, लेकिन दिस इज अ कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट बिटवीन सीक एंड स्किल हब बाय मारिया. एंड so here Farah Musharraf, Recording in progress. तो आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हों यू कैन आस्क लेटर ऑन आफ्टर दिस प्रेजेंटेशन. स्मॉल प्रेजेंटेशन है, छोटी सी है. और इसमें आपके जो जो सवालात हैं उन सारे सवालात के जवाब इस आज की ओरिएंटेशन के अंदर हैं. क्या है, कैसे है, किस तरह से है. सो जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, आई एम फराह मुशर्रफ, डायरेक्टर सीक एस्पायर टू लर्न. और सीक एस्पायर टू लर्न जो है वो ऑलमोस्ट 6 इयर्स होने वाले हैं, जो कि हमारा जर्नी स्टार्ट हुआ था कोविड के टाइम से. एंड मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स कराते हुए आ रहे हैं टीचर्स को, पेरेंट्स को, कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर, एंड डिफरेंट लोगों को. लाइक टेक्नोलॉजी की भी ट्रेनिंग्स दे रहे होते हैं, एंड देन कुछ सब्जेक्ट बेस्ड भी होती हैं, एंड देन टीचर्स ट्रेनिंग्स भी हो रही होती हैं. सो बट दिस पर्टिकुलर ट्रेनिंग अर्ली स्कूल किट, दिस इज बाय द एक्सपर्ट. एंड एक्सपर्ट कौन है हमारे साथ? मारिया एक्सपर्ट हैं अर्लियर्स की. सो ओवर टू यू मारिया. इस ओरिएंटेशन सेशन के बारे में इन लोगों को जरा सा क्लियर आउट करें कि क्या है, किस तरह से है.
and all those things. Sure, sure. Thank you so much, Ms. Farah, for the intro. Okay, welcome everyone. Thank you so much for joining this orientation. This is your very own Maria Imtiaz. So this toolkit has been designed by me, of course, and I have worked on all the areas that whatever the teachers are feeling difficulties in their classroom और किस तरह हम practically उन चीज़ों को classroom में कर सकते हैं implement. So this toolkit is designed according to that. So, as Miss Farah has already introduced herself, so now this is Maria Amtias. I have, this is a bit intro about me that I have done my master's in education, I have done MA in education, and MS in education. Except this, I'm an early years specialist. I have done my early childhood care education and early years diploma. I'm a curriculum developer as well. I have trained almost 200 teachers and I work on the professional development of the teachers, but especially my chair is early years. I'm so affiliated with early years. Like I work on the phonics from the phonics foundations of the teachers, how we can work until the reading, how can we improve the reading skills of the students. So how slowly and gradually we work on different stages. So I mainly work on with the teachers like how we can improve the teaching the early years students. So this is about me. So we have this collaborative, like we are in collaboration with Seek and Skillup. We both are the CEO of our organizations, and I hope you will learn something from this orientation. Definitely there will be some learning for you and you'll get to know about this course as well. What is different in this toolkit? मतलब बहुत सारे courses होते हैं, इसमें क्या ऐसा है? So let's talk about it. ये बहुत हम थ्योरी पे नहीं जा रहे हैं, इसमें कुछ थ्योरी से रिलेटेड नहीं है, बट हर चीज प्रैक्टिकली क्लासरूम्स में जो हमने चीजें टेस्टेड की हैं, जो क्लासरूम में चीजें वर्क करती हैं, वील टॉक अबाउट दोज थिंग्स. उसके बाद वी विल टॉक अबाउट लो कॉस्ट रिसोर्सेज. वैसे रिसोर्सेज बिकॉज ऑब्वियसली आजकल स्कूल्स भी हमें बहुत सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड नहीं करते हैं एंड टीचर डोंट वांट टू इन्वेस्ट योर ओन मनी ऑन यूजिंग दिस रिसोर्सेज. तो लो कॉस्ट मटेरियल को लेके हम किस तरह काम कर सकते हैं क्लासरूम में. Then, in this course, you will learn about how we can focus on whole child. एंड उसके बाद इस टूल किट के बाद यू विल गेट टू नो लाइक कि हम टीचर्स का कॉन्फिडेंस लेवल किस हद तक बिल्ड कर सकते हैं. वी विल बिल्ड अ कॉन्फिडेंस ऑफ द टीचर्स लाइक दे विल बी early years trained after this course because this tool kit is we can say the overall whatever is in early years, ये पूरे early years का निचोड़ है इस टूल किट में. Now let's move further. ये टूल किट है किसके लिए है? सो डेफिनेटली दैट इज फॉर अर्लीस्ट टीचर्स. उसमें टीचर्स हो गए, उसमें असिस्टेंट टीचर्स हो गए, उसमें न्यू टीचर्स हैं इवन, और इवन दे आर एक्सपीरियंस टीचर्स. दे विल गेट टू नो अबाउट द न्यू टेक्निक्स एज वेल. दिस कोर्स इज ऑल्सो डिजाइन फॉर कोऑर्डिनेटर्स, एकेडमिक हेड्स. बहुत सारे एकेडमिक हेड्स कोऑर्डिनेटर्स को अर्ली ईयर्स की इतनी नॉलेज नहीं होती है. सो दिस कोर्स इज डिजाइन फॉर दोज स्पेशली फॉर हेड्स अर्लीस्ट टीचर्स जिनको एक क्लैरिटी चाहिए कि भाई किस तरह हम क्रिएटिविटी से चीजें करें अपनी क्लासरूम में एंड वी कैन लाइक बी अ कॉन्फिडेंट टीचर एज वेल. सो दिस टूल किट इज डिजाइन फॉर ऑल दोज एजुकेटर्स. Now, what's inside this toolkit? Let's start. जैसे हमारा मॉर्निंग टाइम स्टार्ट होता है, बच्चे स्कूल में आ रहे होते हैं, द डे स्टार्ट्स फ्रॉम दैट दैट टाइम. इस टाइम को हम बड़ा वी डोंट टेक इट लाइक कि बहुत हम लाइटली लेते हैं, बच्चे आगे क्लास में बैठ गए एंड लेट्स स्टार्ट द लेक्चर. बट दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम फॉर द स्टूडेंट्स. तो सर्कल टाइम और मॉर्निंग रूटीन्स. मॉर्निंग रूटीन में जब बच्चा आ रहा है, हाउ वी कैन मेक इट लाइक एक मॉर्निंग रूटीन आपका ऐसा होता है कि जो एक बहुत आपके क्लासरूम टेक्निक्स को ना बहुत बच्चों को आगे भी ले जा सकता है. वी कैन से मेक द डे ऑफ द स्टूडेंट, या वो बिल्कुल आपका जो है ना दिन खराब भी कर सकता है. सो आपका सर्कल टाइम मॉर्निंग रूटीन, हाउ वी कैन लाइक मेक इट वेरी इफेक्टिव लो कॉस्ट रिसोर्सेज से. और 10 मिनट हाई एनर्जी सर्कल टाइम फॉर्मूला. ये कुछ फॉर्मूलाज यू लर्न गेट टू नो, जो मैं अभी नहीं बताऊंगी. ऑफ कोर्स वी विल गेट टू नो अब इन द कोर्स एज वेल. ठीक है. 10 मिनट हाई एनर्जी सर्कल फॉर्मूलाज हमारे क्या है, हम वील गेट टू नो अबाउट इट. ग्रीटिंग्स, मॉर्निंग ग्रीटिंग्स हमारी किस तरह जो है वो वी कैन से बच्चों के लिए हाउ दे शुड बी इफेक्टिव, that the child should feel like they have to learn, they should enjoy. So we have to make our circle time in that way कि वो हमारा फुल ना बच्चों को energize करे, rather than falling apart. It can build the interest of the students for whole day. तो हम कुछ circle time morning routine की कुछ different techniques सुनेंगे.
देन कम्स के हमारे अर्ली ईयर्स के क्लासरूम्स। एवरीबडी नोज दैट इन्वायरमेंट इज द थर्ड टीचर। तो हम अपने क्लासरूम्स को किस तरह डिजाइन करना चाहिए हमें, अगेन लो कॉस्ट मटेरियल को लेके हम किस तरह अपने लर्निंग कॉर्नर्स कॉर्नर्स कैसे बनाएं, व्हाट आर लर्निंग कॉर्नर्स, दोज हु डोंट नो दे विल गेट टू नो अबाउट लर्निंग कॉर्नर्स, और उनको लो कॉस्ट मटेरियल से हाउ वी कैन डिजाइन इन्वायरमेंट को, कैसे वी कैन मेक इट एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। फिर हम कुछ जो है फोनिक्स फाउंडेशन पे भी बात करेंगे, अर्ली लिटरेसी पे भी बात करेंगे, दैट इन अर्ली इयर्स हाउ वी कैन टीच द फोनिक्स एंड अर्ली लिटरेसी। उसके बाद हमारा आ रहा है वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल द सब्जेक्ट्स मेनली, ठीक है। अब हम मैथ्स की बात कर रहे हैं, न्यूमेरेसी फन, मैथ्स फन कैसे है, तो हम उसमें मॉन्टेसरी मटेरियल का किस तरह यूजेज होता है, because it is very important especially in maths we are using the Montessori material। तो हम मैथ्स में भी टॉक अबाउट कि हमारा हम जो मैथ्स हो ना दैट शुड बी कॉन्क्रीट एंड जॉयफुल फॉर द स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हमारे Montessori मटेरियल का यूजेज कैसे हो, और हम उसको सीपीए अप्रोच, वी कॉल इट सीपीए अप्रोच, कॉन्क्रीट पिक्टोरियल एब्स्ट्रैक्ट अप्रोच, हम उसको सीपीए अप्रोच के थ्रू मैथ्स को कैसे फन में क्रिएट करें। सो वी विल नो अबाउट दोज टेक्निक्स एज वेल। देन कम्स के हमारा अर्ली ईयर्स में ये सारी चीजें, स्टोरी टेलिंग हो गई, शेयर रीडिंग हो गई, इट सीम्स सो इजी फॉर द टीचर्स कि स्टोरी टेलिंग बहुत इजी है, टीचर पढ़ रही है, बट नो, देयर आर टेक्निक्स फॉर इट टू एंगेज ऑल लर्नर्स, क्योंकि हमारी क्लास में डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्नर्स होते हैं, कुछ इमर्जिंग हैं, कुछ एक्सीडिंग हैं, कुछ एवरेज लर्नर्स हैं, बट हमें ऐसी टेक्निक्स होनी चाहिए विच कैन कवर ऑल द लर्नर्स। तो हम डिफरेंट स्टोरी टेलिंग टेक्निक्स सीखेंगे which we can like cater for all the learners, plus how we can turn one book story book into 5 learning activities। एक स्टोरी बुक से क्या डिफरेंट एक्टिविटीज हम करवा सकते हैं, जिसमें वो सारी एक्टिविटीज होंगी जिसमें हम ओवरऑल सारे बच्चों को कैटर कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्नर्स को, ठीक है। देन हाउ वी कैन ब्रिंग स्टोरीज टू लाइफ विथ प्रॉप्स, वी विल ऑल्सो गेट टू नो कि हम स्टोरी के प्रॉप्स कैसे बनाएं, पपेट्स कैसे बनाएं, एक्सप्रेसिव रीडिंग कैसे हो। मैं आपको यहाँ पे स्टोरी टेलिंग के कुछ प्रॉप्स बनाना भी सिखाऊंगी कि हम एक एक स्टोरी से रिलेटेड 2-3 प्रॉप्स लो कॉस्ट मटेरियल पे हमने कैसे बना लिए, विल वर्क ऑन दैट एज वेल। और फिर शेयर रीडिंग, हाउ द स्टूडेंट्स आर डूइंग शेयर रीडिंग की क्या टेक्निक्स हैं, उसका क्या इम्पैक्ट है बच्चों पे। Then comes play-based learning and learning stations. As we all know कि early years में play-based learning is most important thing, और learning stations might be some people know about it, might be some people don't know। तो हमें अपने अपने टॉपिक्स पे लर्निंग स्टेशंस हम किस तरह क्रिएट करें रिलेटेड टू आवर टॉपिक, बिकॉज लर्निंग स्टेशंस आर वेरी इन दीज डेज। विदाउट लर्निंग स्टेशंस हमारे लेसन जो कंप्लीट नहीं होते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली लर्निंग स्टेशंस में देयर आर ग्रुपिंग, बच्चे ग्रुप वर्क करते हैं, बच्चे पेयर में काम करते हैं। सो देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स कि हम लर्निंग स्टेशंस पे किस तरह की एक्टिविटीज रखें जो चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज आजकल टीचर सेंटर्ड लर्निंग नहीं है, चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग है। तो चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच हमारी कैसे हो, and then child led exploration, child led exploration, what is that? ऐसी टेक्निक्स जिसमें बच्चा खुद ही एक्सप्लोर करे, द चाइल्ड इज द लीडर टू डू द थिंग्स बाय ओन, उसकी चॉइस है, उसको हमने इंडिपेंडेंट लर्नर बनाना है। सो लेट द चाइल्ड डू द थिंग्स बाय देयर ओन। देन कम्स लो बजट हाई इम्पैक्ट स्टेशंस, हम लर्निंग स्टेशंस तो बना रहे हैं, बट लर्निंग स्टेशंस ऐसी हो हमारी जो अट्रैक्टफुल भी लगे, लो बजट पे भी हो, और उनका इम्पैक्ट बड़ा अच्छा हो हमारे बच्चों पे। सो वी विल फोकस ऑन लर्निंग स्टेशंस एंड प्ले बेस्ड लर्निंग एज वेल। देन कम्स क्रिएटिव आर्ट्स एंड सेंसरी प्ले। क्रिएटिव आर्ट्स की जब हम बात कर रहे हैं ना, तो इट अलाउज चिल्ड्रन टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स, देयर इमोशंस। और वो कैसे होता है, इट कैन बी थ्रू ड्राइंग के हो, पेंटिंग हो गई, ड्राइंग हो गई, आर्ट मटेरियल हो गया, दे शो देयर इमेजिनेशंस व्हाट दे आर थिंकिंग। तो ये क्रिएटिव आर्ट हो गया। देन कम सेंसरी प्ले। सेंसरी प्ले क्या है, जिसमें हमारे 2 से ज्यादा सेंसेस वी आर यूजिंग, लाइक सेंस ऑफ साइट, साइट हमने यूज कर लिया, सेंस ऑफ डूइंग हमने यूज कर लिया, लाइक 2 सेंसेस कोई भी इन्वॉल्व हो, सेंस ऑफ हेयर यूज हो गया, ठीक है।
तो सेंसरी प्ले जिसमें बच्चों के सेंसेस यूज हो, एंड देन आर्ट्स इज ऑब्वियसली यू नो अबाउट इट आर्ट्स। अब इन दोनों से क्या फायदा होगा बच्चों का? उनके मोटर स्किल्स इंप्रूव होंगे, फाइन मोटर स्किल्स इंप्रूव होंगे, बच्चे की इमेजिनेशन पे हमने काम किया है, ठीक है, बच्चा इमेजिन कर रहा है, खुद ड्रॉ कर रहा है, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज हो रही हैं, ठीक है। तो इस तरह वी आर वर्किंग ऑन होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। क्रिएटिव आर्ट्स और सेंसरी प्ले से वी आर वर्किंग ऑन होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। उनके हमने इमोशंस पे भी काम कर रहे हैं, ठीक है। व्हेन दे आर वर्किंग टुगेदर वी हैव टू टीच देम दैट दे हैव टू वर्क कोलैबोरेटिवली, कोऑपरेशन सिखा रहे हैं हम, केयर सिखा रहे हैं। सो वी आर वर्किंग ऑन होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड थ्रू क्रिएटिव आर्ट्स, सेंसरी प्ले। सो सेंसरी प्ले और क्रिएटिव आर्ट्स की क्या किस तरह एक्टिविटीज होनी चाहिए और उनका बच्चों पे कैसे इम्पैक्ट है, how it can make like it can work on holistic development of the child, we will talk about these activities as well। बिकॉज आजकल सिर्फ एकेडमिक्स नहीं चल रहा है, एकेडमिक्स के साथ ही बच्चे वांट सम फन एज वेल, ठीक है, बच्चों को कुछ फन कुछ एंटरटेनमेंट चाहिए होता है। एंड एवरीबडी नोज कि आर्ट्स और सेंसरी प्ले से ज्यादा बच्चे किस चीज में एंजॉय करते हैं? सेंसरी प्ले में बहुत सारी चीजें आ जाती है ना, प्लेइंग विद सैंड आ गया, वाटर आ गया। अगर फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं लो कॉस्ट मटेरियल की बात कर रही हूँ, अगर जैसे हमारे पास इफ सैंड इज नॉट अवेलेबल इन स्कूल, राइस हो गए, कुछ इस तरह की हमने ऑल्टरनेट्स किस तरह हमने देखने हैं जो लो कॉस्ट पे हमारे पास अवेलेबल भी हो या लो कॉस्ट पे वी कैन अरेंज दैम। तो वी विल टॉक अबाउट दोज एक्टिविटीज जिससे हम बच्चों का जो है इंटरेस्ट भी डेवलप करें एंड वी कैन मेक लर्निंग फन फॉर दैम। देन सोशल इमोशनल लर्निंग एंड एंगेजमेंट स्ट्रैटेजी जो सबसे इंपॉर्टेंट है और जिसको हम बहुत इंपॉर्टेंस कम देते हैं, दैट इज लाइक बच्चों की सोशल इमोशनल वेलबींग, कि इफ द चाइल्ड इज फीलिंग गुड, उसको हम डिफरेंट टेक्निक्स में हाउ वी कैन लाइक वर्क ऑन दैट सोशल इमोशनल लर्निंग ऑफ चाइल्ड, के बच्चे को हमने रोल प्लेस करवा दिए कुछ इस तरह के, जो इमोशंस बच्चे को पता हो, बच्चे को पता हो हाउ द चाइल्ड इज फीलिंग, ठीक है, बच्चे को अपनी फीलिंग्स पता हो, बच्चे को दूसरों के लिए केयर हो, बच्चे के अंदर एक सिंपैथी हो। सो दिस इज हाउ वी वर्क ऑन सोशल इमोशनल लर्निंग थ्रू रोल प्लेस हो गए, कुछ ऐसी गेम्स हो गई जिससे एम्पैथी हम क्रिएट करें, दूसरों का केयर करिए, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि व्हेन वर्किंग विद द सैंड और वो चीजें आर्ट कर रहे हैं बच्चे, तो उसमें भी हाउ वी कैन लाइक यू नो टीच देम द वैल्यूज, केयर, लव एंड रिस्पेक्ट फॉर मटेरियल, ये सारी चीजें हम बच्चों में इनकलकेट कर रहे हैं, ये सारे वैल्यूज। सो सोशल इमोशनल लर्निंग वो एक्टिविटीज वील डिस्कस, सिंपल स्ट्रैटेजीज जो बच्चों के ट्रेंट्रम्स होते हैं ना, उनको भी हम कैसे स्टॉप करें, हाउ वी कैन वर्क ऑन द ट्रांट्रम्स ऑफ लिटिल किड्स, कि भाई बच्चे इफ द चाइल्ड इज नॉट इन अ मूड तो हम उसको कैसे कन्वर्ट करें उनकी एक्टिव लर्निंग में। प्लस जो बिहेवियर इश्यूज होते हैं हमारे, रादर देन शाउटिंग, चिल्लाने से, हाउ वी कैन लाइक, या पनिशमेंट से, बिकॉज ऑब्वियसली आजकल तो जो है इट्स नो पनिशमेंट एंड जीरो टॉलरेंस है पनिशमेंट पे, फिजिकल पनिशमेंट में। सो बहुत टीचर्स कंफ्यूज होती है, हम चिल्लाए नहीं, हम पनिशमेंट नहीं करें तो हम करें क्या, राइट? तो हाउ वी कैन लाइक रिजॉल्व दीज इश्यूज विदाउट शाउटिंग और पनिशमेंट। देन कम्स टीचिंग फीलिंग्स, शेयरिंग, कॉपरेशन, केयर, ये सारी फीलिंग्स हम बच्चों को सिखा रहे हैं, ठीक है। बच्चों को जब ये फीलिंग्स का एहसास होगा, दे नो दैट हाउ दे आर फीलिंग, और उनके अंदर दूसरों के लिए एक एहसास होगा, देन दे कैन बी यू नो अ गुड ह्यूमन बीइंग एज वेल। सो हमने बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट पे काम करना है, नॉट ओनली एकेडमिक्स बट बच्चे की हम वेल बीइंग पे भी काम कर रहे हैं इन दिस अर्ली ईयर्स टूल किट। देन लास्ट कम, ये सारी चीजें जब हम कर रहे हैं, हम बच्चे के फोनिक्स पे काम कर रहे हैं, बच्चे के मैथ्स, मैंने बता दिया कि हम बच्चे की मैथ्स स्किल्स पे भी काम कर रहे हैं, आर्ट्स पे भी काम कर रहे हैं, सेंसरी प्ले पे भी। अब ये सारी चीजें तो हमने कर ली, देन कम्स के हम इसको रिफ्लेक्ट कैसे करें, हमारे पास वो ऑब्जर्वेशन हम कैसे, मतलब अपने पास ऑब्जर्वेशन सेव करें, या बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन हो जाती है तो हम उसको क्या करें। सो वील डिस्कस हाउ टू ऑब्जर्व मीनिंगफुली, डॉक्यूमेंट कॉन्फिडेंटली, ठीक है, मीनिंगफुल डॉक्यूमेंट्स हो, छोटे छोटे डॉक्यूमेंट टेक्निक्स हम आपको बताएंगे कि उनको किस तरह आप ऑब्जर्व करें चाइल्ड की हैबिट्स को, और उनको किस तरह आप सेव करें, रादर देन इट विल सेव योर टाइम एज वेल। ऐसी टेक्निक्स जो आपका टाइम भी सेव करें और आपने वो रिकॉर्ड भी कर लिया, तो कुछ रिकॉर्ड जो है टेक्निक्स हम आपको बताएंगे जिससे आप ऑब्जर्व करें बच्चों को, उनका रिकॉर्ड, वेदर इट्स देयर रीडिंग रिकॉर्ड और या देयर राइटिंग स्किल्स के हैं, कुछ जो भी रिकॉर्ड्स है, वी विल टॉक अबाउट सम रिकॉर्ड्स एज वेल, कुछ हम रिकॉर्ड्स के कुछ डॉक्यूमेंट्स भी आपको दिखाएंगे विच कैन बी इजी फॉर यू टू यू नो डॉक्यूमेंट दोस्त।
इसके अलावा हाउ वी कैन कम्युनिकेट प्रोग्रेस क्लियरली टू पेरेंट्स। अब हमने रिकॉर्ड तो कर ली चीजें, अब बहुत इंपॉर्टेंट जो होता है कि पेरेंट्स से कम्युनिकेट करना इज वेरी डिफिकल्ट। तो हमने रिकॉर्ड करने के बाद हाउ वी कैन कम्युनिकेट विद द पेरेंट्स, तो पेरेंट्स के लिए क्या स्ट्रेटेजीज हो वाइल कम्युनिकेटिंग विद द पेरेंट्स, विच टेक्निक्स शुड बी यूज्ड, कि हम पेरेंट्स के साथ वो चीजें डिस्कस करें एंड पेरेंट्स शुड अंडरस्टैंड और शुड गेट एन आइडिया कि वेयर द चाइल्ड इज स्टैंडिंग, और हमें किस तरह पेरेंट्स के साथ मिलके कोलैबोरेशन में हाउ वी कैन वर्क टुगेदर वी कैन हेल्प द चाइल्ड to improve those lackings. So reflection, assessment, and how show your observation to the parents, we will talk about these things as well. So this is all about early years toolkit. Let's wrap up this with what we are getting in this course is learning outcomes. ठीक है, क्या क्या है learning outcomes? We'll plan and deliver play based learning हो गई हमारी, child centered lessons हो गए हमारे, ठीक है, we'll work on child centered learning, play based learning. हम engaging classrooms create करेंगे low cost resources को लेके, ठीक है. Third one is we'll conduct effective circle time और daily morning routines, ठीक है. Then हम support करेंगे early literacy, जिसमें हमारे phonics हो गए, maths हो गया, how we can work on these areas. Then how we can promote social emotional skills and positive behavior, बच्चों के हम उसको किस तरह हम बच्चों में social emotional learning लाए और उनके behaviors पे किस तरह काम करें. Then comes how we can observe, assess and communicate children's progress effectively. उनकी progress को पहले तो record कैसे करें और फिर हम पेरेंट्स के साथ कैसे कम्युनिकेट करें. सो दिस इज द होल scenario. You can see that these are the learning outcomes that you will get from this early years toolkit. Now let's talk about course schedule. Miss Farah, are you there? Yes, we are. I am here. Okay, so I'm discussing course schedule now, right? Yes. Okay, so let's talk about course schedule. So we will start this course inshallah in April, from 6th April till 17th of April. That is from Monday to Friday. And the timing is 5 p.m. to 6 p.m. And this will be online on Zoom. We will be taking classes on Zoom. And these are 10 days, Monday to Friday, 5 to 6 p.m. We have just tried to make it very easy for the teachers, like if they are coming back from the work, so that will be like they can take a rest for an hour or two and later on they can join us at 5 p.m. And that's online, so it's easy for everyone to join. You can relax, sit at home, and then you can take your class. That's easy for you. Okay, now let's talk about the learning hours. So we'll be having total 30 learning hours, in which we have live interactive sessions for 20 hours, and then we have collaborative task as well for 10 hours. And that then we will be doing some practical tasks. There will be some kind of assignments for you, and that will be also like 10 hours, right? So, and the most important thing is certificate is also included, right? Certificate is included in this course. So by the end of the session, definitely you will receive the certificate when there is your attendance is almost completed and you have done with your assignments. So you'll get the certificate as well. Then comes learning investment. The most important thing is learning is investment. Actually, this course cost is 1,800, but as we have just started, so we are giving early bird discount, that is 1,500. But as soon as the seats will be reserved, we'll close this discount. So as soon as possible, if you want to register, do it quickly, because when the registration will be filled, like we will be done with the seats and all, then we'll no longer be giving this discount. And there is a group discount as well. 1,500 for obviously 2 or 3%, but if there are 4 to 5 people in a group, so we'll be giving a discount of 1,200. And then if there are like more than 5, so we'll give you a discount 1,000 rupee per participant, right? So there is a discount, group discount. I hope I'm clear with this. Early bird discount is 1,500. Group of 4 to 5 will be like we'll be charging 1,200 each.
and more than 5 will be like 1,000 rupees. Hira Rahman, just give me a minute. When I'll be winding up this, I'll give you a chance to speak up. Okay, so this is the registration link, and these are our WhatsApp number. If you have any query, you can contact me, Maria Mdiaz, or you can contact Miss Farah. And this is the registration link as well, which we'll be sharing you on the groups as well. So if you want to register, you can. Yes. Now, if you have any question, you can ask. यस अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि ये HEC सर्टिफिकेशन है कि नहीं है. नो, दिस इज नॉट HEC recognized, but this we will be providing you our own certificate. ठीक है, we are registered, both the organizations are registered organizations, and this is ठीक है. Yes, Hira has Hina. Yes, यस, Hina was asking हिना this रहमान का question. क्वेश्चन था ये. Okay, anybody else? बिकॉज दिस इज अवर पायलट प्रोजेक्ट, तो इसकी फीस भी तो बिल्कुल हमने नॉमिनल रखी है, जितनी हम सब्सिडाइज कर सकते हैं. दैट इज द थिंग. एंड यू नो, HEC रिकग्निशन या कोई और रिकग्निशन के लिए फिर आपकी फीस जो है वो इस फीस के अंदर काम नहीं हो सकता. ठीक है. Definitely, exactly. Then यस. they'll be charging you more for this. Gee, anybody else? If anyone has question, यस. we are sharing you the You, registration link as well in those groups. who will be registering in the course, they will be getting the certificates from Seek and Skill Hub, both the organizations. Any other questions? And yes, किसी का कोई सवाल, जो ऐसी चीज जो रह गई हो. थैंक यू सो मच साइमा. I didn't know, ma'am. Sama is there too. वेलकम साइमा. यस. Okay, Miss Farah, you have shared the And registration link in chat box yes, as well. and every other. Okay, I think. All right. All right. If you have any questions, so you can Miss ask Sama your is saying I questions. cannot unmute. Yeah, Acha, now Yes. I'm able to Now, talk. Congratulations, both of you, Miss Farah and Miss Maria. It was a very great initiative. And yes, can I answer Miss Hina Rahman here? Miss Hina, देखिए HAC is a degree awarding body and not a certificate awarding body. ठीक है? The certificate awarding bodies are either SBTE or the other one is TEDA, STEDA. Okay, these two bodies are certificate awarding bodies, but these awardees are, I mean, if to get the affiliation or the recognition from these bodies, the certificate will not cost less than 10,000 rupees. Okay, so keeping this thing in mind, I think this is a brilliant opportunity being offered by these two people. And if you have this basic toolkit, you will still get a good job in a good school. That's what I want to say. Thank you so much. And thank you so otherwise, much. brilliant job, Maria and Farah both. You're doing a brilliant job, and I hope you get success every step you take. Thank you so much. Thank you so much, Thank you ma'am. so much, Saima. And Anytime. yes, ये toolkit basically earlier की, this is for mothers, for teachers, for earlier teachers, और जो कि बिल्कुल novice teachers हैं, जो कि चाहती हैं कि हम हम earliers को किस तरह से पढ़ाएं, बच्चों को कैसे जाके पढ़ाएं. So this is I think the best choice for you, कि आप आएं और इसमें सीखें expert के साथ. Who is Yes. the Zoom user saying well explained? Okay, thank you, Thank you Saad. so much, And Bishop Saad Mukhtar. Mukhtar. Okay. Yes, I think this is Humaira. Yes, it's Humaira. Okay, right. Thank you so much for joining us. And आप लोगों को सबके साथ जो है वो लिंक शेयर हो जाएगा. एंड ऑलरेडी मैंने कर भी दिया है, और जल्दी जल्दी से कर लें. सो अवेल द अर्ली बर्ड डिस्काउंट एज वेल, ताकि so you will be the part of this journey. ठीक है? So all the best to all of you, and thank you for joining today's orientation session. See you all in the course, inshallah. Until then,
अल्लाह हाफिज। Okay, Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज।